بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے سعودی عرب کی حدود میں ایرانی آئل ٹینکر پر حملہ، انتہائی تشویشناک خبر سامنے آ گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی سعودی عرب ایران کشیدگی کم کروانے کی کوششیں تیز۔ ترکی نے ہمسایہ ملک پر بڑا حملہ کر دیا، کئی دہاتوں کے اطراف گمسان کی لڑائی، ترک فورسز کے کمانڈرز کی بھی پیش قدمی، فضائی حملے جاری۔ سعودی عرب نے ترکی کے اقدامات کی مخالفت کرتے ہوئے شام میں ترک فوجی آپریشن کی مخالفت کر دی۔ ترک کارروائیوں پر تنقید جاری رہی تو مہاجرین کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ترک صدر رجب طیب اردگان نے بڑی دھمکی دے دی۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنی حفاظت کے لیے امریکہ سے میزائل سسٹم سے لیس جدید ترین طیارے منگوا لیے۔ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف تقاریر کرنی مہنگی پڑ گئی، لندن میں موجود الطاف حسین کے خلاف سخت قدم اٹھا لیا گیا۔ کشمیر میں انسانی المیہ بحران کی جانب بڑھ رہا ہے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی بے حسی قابل افسوس۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو جیل سے چوہدری شوگر مل کیس میں گرفتار کر لیا گیا، نواز شریف 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ پاک فوج کے 3 میجر ڈسپلن کی خلاف ورزی پر برطرف، 2 کو قید کی سزا، تینوں فوجی افسران پر اختیارات کے غلط استعمال اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات ثابت ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی خبر بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب اور ایران کے آئل ٹینکرز پر حملے ہوئے، جن کا الزام امریکہ کی طرف سے ایران پر عائد کیا گیا تھا۔ اب گزشتہ رات ایران کا ایک آئل ٹینکر دہشت گردانہ حملے کی زد میں آ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران کا بحری جہاز 10 لاکھ بیرل تیل لے کر شام جا رہا تھا، جسے نہر سوئز کے راستے شام پہنچنا تھا۔ تاہم آج صبح جب یہ جہاز سعودی عرب کے ساحلی حدود میں جدہ سے 60 میل کے فاصلے سے گزر رہا تھا تو یکے بعد دیگرے جہاز میں 2 دھماکے ہوئے۔ پہلا دھماکہ 5 بجے اور دوسرا 5:20 پر ہوا۔ دھماکوں سے جہاز میں آگ لگ گئی، کئی گھنٹے تک جہاز اسی جگہ کھڑا رہا اور بالآخر عملے نے اسے واپس ایران لے جانے کا اعلان کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ جہاز کے 2 آئل ٹینکرز کو شدید نقصان پہنچا، جس سے تیل نکل کر سمندر میں گرتا رہا، تاہم جہاز کو عملے نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی تھی، تاہم ایران کی طرف سے کسی شدت پسند تنظیم یا گروہ کو اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک کے صدر رجب طیب اردگان کے دورہ پاکستان کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ صدر رجب طیب اردگان 23 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ ترک صدر کا دورہ پاکستان 2 روزہ ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترک صدر اپنے دورہ کے دوران پاکستان کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ واضح رہے کہ ترک صدر کے دورے کی تصدیق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران کی گئی تھی۔ دونوں رہنماؤں میں ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران ہوئی۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان پاکستان میں سرمایہ کاری سمیت کئی منصوبوں کی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ رجب طیب اردگان پاک ترک اعلیٰ سطح کے تصویراتی تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس کی صدارت ترک صدر اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مشترکہ طور پر کیے جانے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب ایران کشیدگی کم کروانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔
वजीर आजम इतवार को ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के फौरी बाद सऊदी अरब रवानगी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब ईरान में सालसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सफारती ज़राए का कहना है कि वजीर आजम की इतवार को ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात होगी और मुलाकात के फौरी बाद सऊदी अरब रवानगी का इम्कान है। दौरा सऊदी अरब में वजीर आजम सऊदी क़यादत से ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की पेशरफ्त पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब में फ्यूचर सरमायाकारी इनिशिएटिव में शरीक होंगे। वजीर आजम को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत सऊदी फरमानरवा ने दी है। सरमायाकारी समिट 29 से 31 अक्टूबर तक रियाद में मुनक्किद होगी, जबकि भारत के वजीर आजम को भी समिट में शिरकत की दावत दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सीरियन डेमोक्रेट फोर्सेज SDF के एक जिम्मेदार ने बताया है कि तुर्की की फोर्सेज ने शाम के कई देहातों पर धावे की कोशिश की, जिसके बाद इनके तरफ शदीद झड़पें शुरू हो गई। इससे कबल तुर्की की वजारत दफा ने जुमेरात के ही रोज बयान में ऐलान किया था कि इसकी जमीनी फौज ने शमाली शाम में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ पेशकदमी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वजारत दफा की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो जारी की गई, जिसमें शामी अराजी के अंदर तुर्क फोर्सेज के कमांडर को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। याद रहे कि शाम के शिमाली मशरकी हिस्से में बुध के रोज तुर्की का हमला इलाके से अमरीकी फौज के इनखला के बाद शुरू हुआ। तुर्की की वजारत दफा के मुताबिक ऑपरेशन के आगाज के बाद तुर्क तैयारों और तोपों ने दरिया फरात के मशरक में 181 हदाफ को निशाना बनाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने तुर्की के इकदामात की मुखालफत करते हुए कहा है कि शाम में तुर्क दस्तों की मुसल्लह कार्रवाई जारी है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहना था कि तुर्की शाम में जारहियत का मुजाहरा कर रहा है। गैर मुल्की खबर साधारे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि तुर्क फौज के इस ऑपरेशन से खित्ते की सलामती को खतरात लाहिक होंगे। फौजी कार्रवाई से न सिर्फ इलाकाई सलामती खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि इसके खित्ते में इस्तेहकाम पर भी बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि तुर्की में शाम की कार्रवाइयों पर तनकीद जारी रही तो मुल्क में बसने वाले 36 लाख शामी महाजरीन के लिए यूरोप के दरवाजे खोल देंगे। गैर मुल्की खबर साधारे के मुताबिक इस्तांबुल में अपनी जमात की तकरीब से खिताब करते हुए रजब तय्यिप एर्दोगान ने धमकी देते हुए कहा है कि शाम में खुलेआम दर्जनों दहशतगर्द गिरोह मुतहर्रिक हैं और दहशतगर्दों का किला कमा करने के लिए तुर्क ऑपरेशन को तनकीद का निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी हिफाजत के लिए अमरीकी तैयारे खरीद लिए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा साल जुलाई से मिसाइल और दफाई सिस्टम से लैस 2 खसूसी तैयारों में सफर करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए 2 तैयारे मिसाइल और दफाई निजाम से लैस B-777 अमरीका से जुलाई में भारत पहुंचेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नफरत अंगेज तकरीर केस में बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इन पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक नफरत अंगेज तकारीर के इल्जाम में जमानत खत्म होने पर बानी MQM तीसरी बार लंदन की पुलिस स्टेशन में पेश हुए, जहां उन्होंने तीसरी बार भी लंदन पुलिस के सवालों के जवाबात नहीं दिए, जिस पर उन्हें हिरासत में लिया गया। बानी MQM को हिरासत में लिए जाने के बाद वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचाया गया, जहां बानी मुत्तहिदा MQM को कोर्ट के सेल में रखा गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी को झंझोड़ने की कोशिश की है। मसला कश्मीर से मुतल्लिक चश्मपोशी पर वज़ीर आज़म का कहना है कि कश्मीर में इंसानी अलमिया बहरान की जानिब बढ़ रहा है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया के दोहरे मियार पर हैरत का इजहार करते हुए लिखा कि हांगकांग के मुजाहरों पर शायद सुर्खियां
जमाने वाला मीडिया कश्मीर में इंसानी हकूक के संगीन बहरान से नजरें चुराता है। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर पर गासबाना कब्जा कर रखा है। हुर्रियत रहनुमाओं समेत हजारों कश्मीरी कैद में है। वजीर आजम इमरान खान ने जोर दिया कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर को करारदादों के मुताबिक हल के लिए अपना किरदार अदा करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल केस में कोट लखपत जेल से गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असद अवान ने मौकफ अख्तियार किया कि नवाज शरीफ से चौधरी शुगर मिल केस में तफ्तीश करनी है, जिसके बगैर केस आगे नहीं बढ़ सकता। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए 25 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के 3 मेजर्स को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और मिसकंडक्ट पर सजा दी गई है। ISPR के मुताबिक 2 मेजर्स को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इनके खिलाफ इल्जामात में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होना भी शामिल है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।